Good morning, students. Today we will see the question answers of Long Walk to Freedom. First of all, have a look on the summary of the chapter. This chapter is an extract from the autobiography of Nelson Mandela, the first black president of South Africa. It begins with the description of their inaugural ceremony, which took place on the 10th of May 1994, where the entire nation, along with many international leaders, embraced the victory of a newly and fairly elected government. It involved speeches by the president and two deputy presidents, followed by an impressive air show of fighter jets and helicopters. Long ago, in the first decade of the impressive decade of the 20th century, white supremacy introduced the system of apartheid and made life a living hell for the dark-skinned population. It gave rise to one of the most inhumane societies of the world. Many people have struggled and sacrificed for basic human rights. The author expressed his desire to thank all those freedom fighters who could not live to see this autumn day. He referred to the citizens as the greatest asset of the country. It is these people he gathered his courage from. Mandela believes that courageous is not the man who is fearless, but the man who has overcome fear. He also mentioned the two responsibilities every human has and how, in order to fulfill his obligation towards the society, his obligation towards his family was neglected. He became a man of people when he realized that the idea of freedom was an illusion for him and people like him. It was then he joined the African National Congress and fought for his rights till he became the first black president of the nation. According to him, the oppressor is as much a prisoner as the oppressed. As soon as the former robs of the oppressed of their freedom, he himself gets robbed of his humanity. Thus, the oppressor too is not free. Now, we'll see the question answers. Where did the ceremonies took place? Can you name any building in India that are made of sandstone? The ceremonies took place in an amphitheater which was formed by Union Buildings in Pretoria. तो सेरेमनी कहाँ हुई थी? प्रिटोरिया में हुई थी, जिसके आसपास क्या थे? यूनियन बिल्डिंग्स बने हुए थे. इन इंडिया वी हैव मैनी पब्लिक बिल्डिंग मेड ऑफ सैंडस्टोन. हमारे इंडिया में भी इस तरह के कई बिल्डिंग्स हैं जो सैंडस्टोन के बने हैं. सम ऑफ विच आर राष्ट्रपति भवन, रेड फोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली. कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? आप कैसे कह सकते हो कि 10th May ऑटम डे है साउथ अफ्रीका में? सिंस साउथ अफ्रीका लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, मीन्स साउथ अफ्रीका जो है वो सदर्न यानी दक्षिणी हेमिस्फीयर में यानी गोलार्ध में है. वी कैन से दैट मे फॉल्स इन द ऑटम सीजन. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑटम मई में पड़ता है ना. मतलब ऑटम मई महीना ऑटम सीजन में आता है. ऑल्सो ऑन दिस डे द पीपल गॉट फ्री फ्रॉम ऑल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कलर एंड रेस. और इस दिन यहाँ के लोग सभी अपने जातीय यानी रेस मतलब जाति और कलर मतलब रंग के आधार पर जो गुलाम थे उन डिस्क्रिमिनेशन से भेदभाव से मुक्त हुए थे. फर्दर इन ऑटम और भी इसे ऑटम सीजन में क्या होता है? ओल्ड लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री एंड गिव बर्थ टू न्यू वन. पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं. इन द सेम वे ऑल रेशियल डिफरेंसेस वर ओवर इन साउथ अफ्रीका. इसी तरह से यहाँ पर भी सभी रेशियल डिफरेंसेस जो भी जातीय अंतर थे वो सब दूर हो गए. देयर वाज न्यू बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी. और वहाँ पर देर नया जन्म हुआ डेमोक्रेसी का. एट द बिगिनिंग ऑफ स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर. अपनी स्पीच के शुरुआत में मंडेला कहते हैं एक एक्स्ट्रा ह्यूमन
एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर के बारे में बताते हैं। व्हाट डज ही मीन बाय दिस, उनका मतलब क्या है इससे। व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और किस ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट की बात करते हैं एंड में। बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला इज रेफरिंग टू द अपार्थाइड सिस्टम दैट वाज प्रीवेलेंट इन साउथ अफ्रीका, यानी कि अपार्थाइड का सिस्टम यानी रंग भेद की नीति जो साउथ अफ्रीका में प्रीवेलेंट थी, पनपी हुई थी अंडर द प्रीवियस लीडरशिप, इसके पहले जिनका राज था यानी कि वाइट सुपरमेसी का। पीपल ऑफ कलर वर ट्रीटेड अनफेयरली, ऐसे लोग यानी पीपल ऑफ कलर मीन्स ब्लैक पीपल, उनको अनफेयरली ट्रीट किया जाता था एंड नो ह्यूमन बीइंग डिजर्व दैट, और उनके जैसे जितने भी लोग थे उनको कोई अपनी आज़ादी प्राप्त करने का अधिकार नहीं था या कोई भी अपने अधिकार। ही स्टूड अगेंस्ट द अनजस्टिस प्रैक्टिसेस, और मंडेला इन सब प्रथाओं के प्रति खड़े हुए एंड फाइनली वन द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, और वो इलेक्शन जीत गए टू बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और इस तरह से वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। ही रेफर्स टू हिज विन एज ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और उन्होंने इसको एक ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट बोला। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, मंडेला सभी इंटरनेशनल लीडर्स का किस लिए धन्यवाद करते हैं। मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्टिंग देम इन देयर विक्ट्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि वो सभी उनको उनकी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए आए थे, इसलिए उन्होंने धन्यवाद दिया। विक्ट्री ऑफ फ्रीडम, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। अर्लियर मैनी नेशंस हैड कट टाइज विद साउथ अफ्रीका, इसके पहले बहुत सारे राष्ट्रों ने साउथ अफ्रीका से अपने जो टाइज थे यानी रिलेशन थे वो ख़त्म कर दिए थे, बिकॉज ऑफ देयर प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड, क्योंकि यहाँ पर रंगभेद की नीति के कारण। व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने कौन से आदर्श स्थापित किए। एज द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला वांटेड टू लिबरेट द कंट्री, क्योंकि वो नए नए राष्ट्रपति चुने गए इसलिए वो देश की आज़ाद, मंडेला वांटेड टू लिबरेट द कंट्री, अपने देश को आज़ाद करना चाहते थे, ऑफ ऑल द अनजस्टिस प्रैक्टिस, सभी अनजस्टिस यानी अन्यायपूर्ण प्रथाओं से। ही सेट आउट आइडियाल्स फॉर अ कंट्री, वो अपने देश के लिए ऐसे आदर्श स्थापित करना चाहते थे विच वॉज फ्री ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव और इनजस्टिस अन्याय से मुक्त हो। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया। हाउ वाज देयर एटीट्यूड चेंज, उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ और क्यों। द मिलिट्री जनरल सैल्यूट नेल्सन मंडेला, मिलिट्री जनरल्स ने नेल्सन मंडेला को सैल्यूट किया एंड प्रॉमिस देयर सपोर्ट टू द न्यूली फॉर्म डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और अपना सपोर्ट देने के लिए प्रॉमिस किया। देयर एटीट्यूड हैज़ चेंज, उनका एटीट्यूड आज बदल गया, उनका व्यवहार बदल गया। बिकॉज अर्लियर दे वर अंडर द रूल ऑफ वाइट सुपरमेसी, क्योंकि इसके पहले वो वाइट सुपरमेसी के अंडर में थे। ड्यूरिंग दैट रूल, और उस रूल में, उस शासन में, दे वुड हैव अरेस्टेड मंडेला, उन्होंने मंडेला को अरेस्ट किया था एज ही वाज कंसिडर्ड टू बी अ क्रिमिनल, क्योंकि उन्हें अपराधी माना जाता था। नाउ विद द एबोलिशन, एबोलिशन मतलब समाप्ति, फिनिश्ड ऑफ अपार्थाइड, अपार्थाइड अब फिनिश हो गया, रंगभेद खत्म हो गया, एंड अ फॉर्मेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का निर्माण हुआ। देयर एटीट्यूड हैज ऑल्सो चेंज, उनका एटीट्यूड भी बदल गया। वाई वर टू नेशनल एंथम संग, दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए। द टू नेशनल एंथम, वन ऑफ द ब्लैक्स एंड अदर ऑफ द वाइट्स वर संग, दोनों के नेशनल एंथम गाए गए सिम्बलाइजिंग इक्वालिटी, यानी दोनों को बराबर हो गए हैं, ये सिम्बलाइज करने के लिए ये प्रतीक बताने बना इसका। एंड रिस्पेक्ट फॉर द एंटायर कम्युनिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, और उनके कलर के में कोई भेदभाव किए बिना पूरी कम्युनिटी को यानी समुदाय को सम्मान में गाए गए। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री in the first decade and in the final decade of the 20th century. In the first decade of the 20th century, white supremacy created a system of racial domination. 20th century के पहले डिकेड में वाइट सुपरमेसी ने एक जातीय डोमिनेशन का यानी कि वो ज़्यादा हावी हो गया ऐसा सिस्टम बनाया, एंड मेड लाइफ अ लिविंग हेल, और ज़िंदगी को नरक बना दिया फॉर द डार्क स्किन पीपल, काले लोगों के लिए। मंडेला रेफर्ड इट एज वन ऑफ द हार्शेस्ट इनह्यूमन सोसाइटी, मंडेला ने इसी को एक बहुत ही हार्श और इनह्यूमन अमानवीय कहा है दुनिया का ऐसा सिस्टम।
इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी द सिस्टम ऑफ वार्टेड हैज़ बीन चेंज, लेकिन फाइनल डिकेड में ये सिस्टम बदल गया, यानी आखिरी के 10 सालों में 20th सेंचुरी के, इंटू वन दैट रिकग्नाइज ऑल ह्यूमन, और इस सिस्टम में सभी लोगों को समान अधिकार मिले एज इक्वल रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, बिना उनके कलर देखे हुए, जाति या जेंडर देखे हुए। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मंडेला का करेज से क्या मतलब है? टू मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर, मंडेला के अकॉर्डिंग करेज यानी साहस का मतलब ये नहीं है कि डर ना हो, बट द विक्ट्री ओवर इट, किंतु डर के ऊपर जीत पाना ही साहस है। अ मैन हु इज करेजियस इज द वन, वही आदमी साहसी है, हु हैज ओवरकम हिज फियर, जिसने अपने डर पे जीत पा ली हो। विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू इट, किस चीज़ को वो नेचुरल कहते हैं, प्रेम करना या घृणा करना? ही बिलीव्स लव्स कम मोर नेचुरली टू ह्यूमन एज अपोज टू हेट, उनका कहना है कि नफरत की तुलना में लव नेचुरली ज़्यादा होता है। नो वन इज़ बॉर्न विथ हेटरेड इन हिज हार्ट फॉर अनदर, कोई भी जन्म से ही किसी दूसरे को नफरत करते हुए पैदा नहीं होता। व्हाट टू एप्लीकेशन डज मंडेला मेंशन, मंडेला किन दो ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं? अकॉर्डिंग टू मंडेला एवरी पर्सन हैज टू एन ऑब्लिगेशन, वन टुवर्ड्स हिज फैमिली, फ्रेंड्स, वाइफ, चिल्ड्रन, and the other towards his society and his community. What did being free mean to Mandela as a boy? Boy के रूप में जब वो बालक थे तब मंडेला के लिए फ्री होने का क्या अर्थ है, एंड एज अ स्टूडेंट और एक विद्यार्थी के रूप में हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दिस ट्रांजिटरी फ्रीडम, और इस ये जो फ्रीडम है बचपन का वो ट्रांजिटरी फ्रीडम है यानी कि स्थायी नहीं है, विद द बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम, इन दोनों की तुलना वो कैसे करते हैं? एज अ यंग बॉय एंड अ स्टूडेंट मंडेला idea of freedom was to be able to stay out at night, छोटे में उनके लिए आज़ादी क्या थी? बाहर जाना, रीड वॉट एवर ही डिज़ायर, जो भी चाहे पढ़ना, एंड गो वेर एवर ही चूज़, और जहाँ भी जाना चाहे। ऑन ग्रोइंग अप एज अ मैन, लेकिन जब वो बड़े हुए ही रियलाइज, उन्हें एहसास हुआ दैट दीज वर ट्रांजिटरी फ्रीडम, की ये तो अस्थायी आज़ादी है। ही वॉज लुकिंग फॉर बिकॉज दे आर बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, और उनको अपनी बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम चाहिए थी जो हैड बीन टेकन अवे, छीन ली गई थी। देयर वॉज नो लिबर्टी, उन्हें आज़ादी नहीं थी टू हैव अ पीसफुल मैरिज, शांति से शादी करने की, फैमिली बनाने की, या लाइफ अच्छे से रहने की। डार्क स्किन पीपल वर डिप्राइव, डिप्राइव मतलब वंचित कर देना, ऑफ देयर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनसे उन्हें वंचित कर दिया जाता था। फॉर देम फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, और उनके लिए आज़ादी एक भ्रम थी। डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री, क्या मंडेला ये मानते हैं कि जो ऑपरेसर है यानी जो किसी पर अत्याचार करता है वो फ्री है? क्यों नहीं? अकॉर्डिंग टू मंडेला द ऑपरेसर इज नॉट फ्री, मंडेला के हिसाब से जो किसी पर अत्याचार करता है वो भी फ्री नहीं है, बिकॉज ही इज इन द कैप्टिव और स्लेव ऑफ हेट्रेड, क्योंकि वो नफरत का स्लेव है, गुलाम है। ही इज एंस्लेव्ड बाय द प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस, वो छोटी सोच में जकड़ा हुआ है, बिकॉज ही इज अनेबल टू थिंक और एक्ट विदाउट प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस, और वो इनके बिना सोच ही नहीं सकता। बोथ आर सिमिलर एज दे आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, ऑपरेस और ऑपरेस दोनों ही सिमिलर हैं क्योंकि उनकी ह्यूमैनिटी रॉब हो चुकी है, लुट चुकी है। Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने ये फंक्शन क्यों अटेंड किया? What did it signify the triumph of? इसमें ट्रायम्फ का क्या मतलब है? At the inauguration ceremony there was a large number of international leaders, बहुत सारे लीडर्स आए टू सेलिब्रेट द एंड ऑफ अपार्ट सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी यानी रंगभेद की नीति वो ख़त्म हो गई थी, एंड टू डिस्प्ले देयर सपोर्ट फॉर साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका को सभी अपना सपोर्ट देने आए थे। इट सिग्निफाइड द ट्रायम्फ ऑफ जस्टिस, और इससे ये प्रतीक है किस बात का? जस्टिस, ट्रायम्फ ऑफ जस्टिस ओवर प्रिजुडाइस, यानी कि प्रिजुडाइस के ऊपर जो प्रथाएं हैं उनके ऊपर न्याय, करेज ओवर फियर, और फियर के ऊपर करेज का, एंड राइट ओवर रॉन्ग, और गलत के ऊपर सही की जीत का। What does Mandela mean when he says he is simply the sum of those African patriots? उनका क्या कहना है जब वो कहते हैं कि वो अफ्रीकन पेट्रियोट्स के सम है? मंडेला wanted to thank the generals from him before him, अपने पहले आए हुए जो भी generations before him,
उनके पहले जो जनरेशन थी उसको धन्यवाद देते हैं। हु हैड फॉट फॉर जस्टिस, जिसने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। ही गैदर्ड हिज करेज फ्रॉम दीज ब्रेव हीरोज, क्योंकि उन्होंने इन्हीं महान लोगों से, ब्रेव लोगों से अपना हिम्मत मिली। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट, उन्हीं के कारण ही फॉट फियरलेसली, वो फियरलेसली लड़े फॉर व्हाट इज़ राइट, कि क्या सही है उसके लिए। दस ही रेफर टू हिमसेल्फ, इसलिए वो कहते हैं कि वो उन सभी का सम है। वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, क्या आप ये मानते हैं कि ज़्यादा अत्याचार से करने से उतने ही अच्छे लोगों का जन्म होता है? यस आई एग्री दैट डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर के लोग पैदा होते हैं जितना भी अत्याचार होता है, जितना टॉर्चर किया जाता है। मंडेला इलस्ट्रेटेड दिस आइडिया बाय द एग्जाम्पल ऑफ ऑल दोज हु हैड इमर्ज एज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, वो सभी ग्रेट फ्रीडम फाइटर का एग्जाम्पल देके हमें ये बताते हैं। आफ्टर ईयर्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूचैलिटी, जिन्होंने अत्याचार को झेला। दो अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ऑल दिस, और इसके अनचाहे परिणाम हुए, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज और स्ट्रेंथ के लोगों का जन्म हुआ। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री के भी वो सारे एग्जाम्पल्स इसी तरह से हैं। हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस, मंडेला की जो सोच थी वो फ्रीडम के बारे में, वो उम्र और एक्सपीरियंस के हिसाब से कैसे बदल गई। एज अ यंग बॉय अंडरस्टूड एंड मंडेला आइडिया ऑफ फ्रीडम वाज टू बी एबल टू स्टे आउट एट नाइट, जब वो छोटे थे तो बाहर रहना ही उनके लिए आज़ादी थी। रीड वॉट एवर ही डिज़ायर, जो चाहे पढ़ें वो उनके लिए आज़ादी थी। एंड गो वेन एवर ही चूज, जहाँ जाना चाहे वहाँ जाए। ऑन ग्रोइंग अप एज अ मैन ही रियलाइज, लेकिन जब वो बड़े हुए उन्हें एहसास हुआ दैट दीज वर ट्रांजिटरी फ्रीडम, कि ये तो ट्रांजिटरी फ्रीडम है। ही वॉज लुकिंग फॉर बिकॉज द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, लेकिन उनको बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम की तलाश थी। दैट हैड बीन टेकन अवे, जो उनसे छीन ली गई थी। देयर वॉज नो लिबर्टी टू हैव अ पीसफुल मैरिज, उनको कोई आज़ादी नहीं थी। हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, आज़ादी की सोच ने मंडेला की लाइफ को कैसे बदल दिया। वंस मंडेला रियलाइज हिज हंगर फॉर फ्रीडम हिज लाइफ चेंज फॉर एवर, एक बार जब उन्होंने आज़ादी पाने के लिए सोचा तो उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। इट ट्रांसफॉर्म्ड हिम फ्रॉम अ फैमिली मैन टू अ मैन ऑफ हिज पीपल एंड अ फ्राइटेड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। वो एक फैमिली लविंग मैन थे, उन्हें अपनी फैमिली से अलग रहना पड़ा, और वो काफ़ी फ्राइटेड हुआ करते थे, लेकिन अब वो काफ़ी बोल्ड बन गए। ही बिल्ट हिज एंटायर लाइफ अराउंड फाइटिंग फॉर द बेसिक फंडामेंटल राइट, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी आज़ादी को पाने के लिए संघर्ष किया। ही वॉज मोर सेल्फलेस एंड वर्चुअस देन एवर, अब वो और ज़्यादा सेल्फलेस हो गए और वर्चुअस हो गए। थैंक यू।